Hello everyone, welcome back to yet another episode of Healther Bar. So we have been discussing hypotension and hypoglycemia, मतलब low blood pressure और low sugars. एंड आज उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हम करने की कोशिश करेंगे. आपके मन में अगर कोई सवाल है तो प्लीज पुट इट डाउन in the chat box and we'll try to answer it. Before we start this session today, I would request Joshi ji to please come forward and conduct the morning prayer. सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। आज फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि तदनुसार 27 फरवरी 2022। आज की प्रार्थना गुरु वंदना। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओवर टू मीनाक्षी में। थैंक यू. Thank you, Joshi ji, for that lovely prayer this morning and attempting to take us towards a parasympathetic mode of thinking. So I'm going to start the presentation now and कुछ selected questions मेरे पास में है which I will be discussing. And if you have any questions related to low sugar and low BP, please put them down in the chat box and we'll try to answer them. तो सबसे पहला सवाल है कि कौन सी पोजीशन में हमें रहना चाहिए इन द when you have hypotension. हाइपोटेंशन में आपको याद होगा मैंने बोला था कि वीनस कूलिंग होती है लेग्स में जो ब्लड है वो इकट्ठा हो जाता है. तो हेड एंड को लो करके एंड लेग्स को रेज करके यू कैन लाई डाउन. दिस इज कॉल्ड द ट्रेंगलेनबर्ग पोजीशन. एंड इसको हम जब हमारी ब्लड प्रेशर बहुत लो होती है देन वी कैन डू दिस. हमारे लेग्स को एलिवेट रख के हेड को थोड़ा सा लेग के लेवल के नीचे रख के हम इसको लेट सकते हैं. दिस विल हेल्प. It will help drain the blood towards the brain. So this is a position you can be in with hypotension. So what would you suffer from with hypotension? So ये symptoms के बारे में सवाल है. So of course when you have low blood pressure, चक्कर आना, बहुत ज्यादा weakness लगना, हरारत होना, फेंट बेहोश हो जाना एंड इसके अलावा बेहोश होने की वजह से कुछ ना कुछ इंजरी आपको होना बिकॉज ऑफ द फॉल, ये हो सकता. दीज आर द पॉसिबिलिटीज. सो अगेन व्हेन यू हैव सिवियरली लो ब्लड प्रेशर, उसके वजह से आपके शरीर में अगर आपके ब्लड प्रेशर कम है, खून आपके हर ऑर्गन में थोड़ा कम पहुंच रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीजन भी कम पहुंच रहा है टू द डिफरेंट ऑर्गन्स इन द बॉडी. सो बिकॉज ऑफ दैट there might be some sort of damage to these different organs जिनमें blood कम पहुंच रहा है. So this happens in severe hypotension. अगर थोड़ा बहुत hypotension है then that doesn't happen. Usually if you just walk around and if you maybe just hydrate yourself, then this comes back to normal. जब if it is still around somewhere around 90/60, 95/65, इस तरह की जब कुछ कल कुछ सवाल आए थे मेरे पास. So if it is around 100/60, we are still okay. 90/60 से जब नीचे आने लगता है then we are really worried and that's when you need to take some action. What should you not do if you have hypertension? आपको सबसे पहले you have to not be standing too much. You need to lie down maybe. जैसे मैंने बताया ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन में आप रह सकते हैं.
ये मैंने 1-2 दिन से मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ कि इमोशनली अपसेटिंग सिचुएशंस दीज कैन लीड टू लो ब्लड प्रेशर. सो I've read about it in the last 2-3 days, and there are umpteen number of articles that are associating hypotension or low blood pressure with depression and mood and lowered mood conditions. जिसमें आपकी mood conditions low होती है उसमें blood pressure भी low रहता है. This has been studied extensively, and this has been a lot of studies claim this. So emotionally upsetting situations जो हैं, they lower your blood pressure, and it is important to understand your triggers. अगर आपको लगता है कुछ इमोशनली अपसेटिंग सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर आपका लो हो रहा है, you can try to speak to a therapist, and the therapist might suggest some cognitive behavioral therapy for you, and they can help you to get out of these emotionally upsetting situations. So उससे भी आपका blood pressure में आपको फर्क पड़ेगा. This is something that you can sort of consider uh, as a trigger for your low blood pressure. So this banana is a blood pressure lowering food. बनाना में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, एंड पोटेशियम जो है ये ब्लड प्रेशर को कम करता है. सो फॉर व्हेन यू हैव लो ब्लड प्रेशर, it might not be advisable to have bananas, but yes, people who have high blood pressure, they can consume bananas daily. सो कौन सा फ्लूइड दिया जाता है हाइपोटेंशन में? अगर हम घर पे बात करें तो नमक का पानी जो है ये आप उनको दे सकते हैं. नमक में नमक की शिकंजी या नमक में नींबू पानी बना के दे सकते हैं. रिंगर्स लैक्टेट इज वेरी इजीली अवेलेबल इन एनी मार्केट. दिस इज ऑल्सो that can be given, but this of course will be given IV. So as I said, नींबू नमक एंड पानी is something that you can just give someone who has low blood pressure, and that will help with their hypotension. बात बात करते हैं अब कुछ हाइपोग्लाइसीमिया के रिलेटेड सवाल से. सो अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है एंड यू आर नॉट, एक्सक्यूज मी, अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है एंड आप तब भी नहीं खाते तो क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन योर बॉडी एट द सेल्यूलर लेवल? So what happens is that शुगर लेवल जब बहुत लो हो जाते हैं, देन जो पैक्ड शुगर है बॉडी के अंदर में, ग्लाइकोजन नाम का एक, दिस इज अ पैक्ड शुगर. तो इसको पैनक्रियास जो है सिग्नल देते हैं कि ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके हमें ग्लूकोज को बॉडी में रिलीज करना है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेलाइसिस. बट ऑफ कोर्स लेट्स नॉट गेट इनटू दोस टेक्निकल टर्म्स. कि हमारा एक पैक्ड शुगर रहता है बॉडी में, एंड दैट उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस में व्हेन यू हैव हाइपोग्लाइसीमिया. तो दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस. सो तब तक ये ग्लाइकोजन जो है, ये ग्लाइकोजन में जो पैक्ड ग्लूकोज है ये रिलीज कर देता है, एंड ये रिलीज ग्लूकोज जो है ये आपके शुगर लेवल्स को मेंटेन रखता है जब तक आप खाते नहीं है कुछ. द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग शुगर, देन दिस ग्लाइकोजेनेलाइसिस इट, ये शट डाउन हो जाता है अगेन, एंड ये स्टोर्ड शुगर रह जाता है. सो दिस इज जस्ट एट द सेल्यूलर लेवल टू एक्सप्लेन टू यू कि अगर आप नहीं भी खाते हैं तो क्या होता है. लेकिन अगर लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपोग्लाइसीमिया रहता है, दिस कैन बी क्वाइट डेंजरस. सो नॉर्मल इनिशियल लेवल ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया में आपको थोड़ी सी हाथ की कंपन, नर्वसनेस, स्वेटिंग, चिल्स, ठंडा पसीना आना, चक्कर आना, बहुत तेज भूख लगना, जी घबराना, कंफ्यूजन सा होना, वीकनेस होना, बहुत ज्यादा नींद आना, कभी कभी किसी लोगों को फिट्स या सीजर्स आ सकते हैं, एंड कॉन्शियसनेस जो है they can lose, this can be there can be fainting as well. So this can happen, and so if you have severe hypoglycemia, बहुत ज्यादा hypoglycemia अगर है तो ये आपको
this can even lead to coma. So you have to be very careful. So for a diabetic, usually hypoglycemia can be more dangerous than hyperglycemia. Hyperglycemia of levels 200 300 ये भी हम काफी अक्सर देखते हैं, बट ये एक इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होती. हाइपरग्लाइसीमिया में, हाइपर मतलब जब शुगर बहुत ज्यादा होती है, 400 या 500 तक शुगर आती है, तो कीटो एसिडोसिस हो सकती है, एंड दैट इज एन इमरजेंसी, बट ये बहुत रेयर है. बट उससे ज्यादा फार मोर कॉमन इज हाइपोग्लाइसीमिया. एंड हाइपोग्लाइसीमिया की जो कॉम्प्लिकेशंस है, ये भी काफी डेंजरस है. सो यू नीड टू कीप देम इन माइंड. सो इसका बहुत सिंपल एंड सरल आसान तरीका है इसको ट्रीट करने का. आप सिर्फ एक खजूर जो है इसको खा सकते हैं. इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, एंड इट विल इंक्रीज योर शुगर लेवल्स इमीडिएटली, इंस्टेंटली इंक्रीज होते हैं. गुड़ जो है, आप गुड़ खा सकते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी इंक्रीज. सो व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, डॉक्यूमेंटेड हाइपोग्लाइसीमिया है, आई ऑलवेज रेकमेंड द डायबिटिक्स कीप वन डेट ऑन देयर बेड साइड. खजूर जो है उसको वो रख सकते हैं. एंड यू कैन जस्ट, अगर शुगर हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है उनको, देन दे कैन जस्ट कंज्यूम दैट, एंड जो शुगर लेवल्स है वो इंस्टेंटली बढ़ जाते हैं. सो वेरी वेरी इजीली ट्रीटेबल कंडीशन, एंड देयर शुड बी नो कॉम्प्लिकेशंस अमंग अस रिलेटेड टू हाइपोग्लाइसीमिया. सो सबसे पहला ऑर्गन कौन सा है हाइपोग्लाइसीमिया से जो इफेक्ट होता है? that would be the brain. So the brain is the first one to react to hypoglycemia. यहाँ पे जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जैसा मैंने आपको बताया, यू गेट ऑल दोज सिम्टम्स, बट द ब्रेन इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू लो ब्लड शुगर. सो इट कैन स्टार्ट, देयर कैन बी अ डिसफंक्शन इन द न्यूरल नेटवर्क्स, एंड आपको कुछ जो रिएक्शन टाइम है वो आपका स्लो हो सकता है. मतलब कि आई होप यू ऑल नो व्हाट इज द रिएक्शन टाइम. कि आप कोई भी आपके, जैसे सपोज आई एम डूइंग दिस, मेरा इंस्टेंट रिएक्शन होगा टू ब्लिंक बिकॉज आई एम प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ. तो ये जो रिएक्शन टाइम होता है टू एनी एडवर्स इवेंट, ये जो है ये बहुत स्लो हो जाता है. सो इफ आई डोंट ब्लिंक, आई माइट hurt myself. So this is the brain reacting quickly, and जो ये reaction time है instantly for me to blink, that is delayed if you have hypoglycemia. And blurred speech, मतलब मेरी जो जबान है वो लड़खड़ा सकती है, फेंटिंग हो सकती है, एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट इट, सीजर्स, फिट्स, इस तरह के सिम्टम्स आपको आ सकते हैं विद हाइपोग्लाइसीमिया. So the brain is very, very sensitive to low blood sugars, and this one is the first one to react to this condition. So that's about it. किस तरह के खाना आपको नहीं खाना चाहिए जिन लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया बहुत फ्रीक्वेंटली होता है? सो ये आई थिंक दिस इज कॉमन टू ऑल. ट्रांस एंड सैचुरेटेड फैट्स जो हैं, जो ज्यादातर पैकेज फूड में आपको मिलते हैं, ये आपको अवॉइड करना चाहिए. बहुत ज्यादा शुगर रिच फूड्स आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज आपका जो शुगर लेवल्स हैं वो स्पाइक करेंगे, फिर वो अचानक से नीचे आएंगे, फिर वो स्पाइक करेंगे. दिस इज समथिंग दैट यू शुड अवॉइड. आपको ये चाहिए कि आपके शुगर लेवल्स जो हैं वो एक बैलेंस मेंटेन करें. प्रोसेस्ड फूड, excessive caffeine and alcohol, these things should be avoided for people who have hypoglycemia. So आप याद रखें कि डायबिटीज कंडीशन जिसमें आपको कॉन्स्टेंटली आपको हाइपर ग्लाइसीमिया होती है, मतलब ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होते हैं, लेकिन इनमें हाइपोग्लाइसीमिया काफी कॉमन होती है. दिस कुड बी ड्यू टू ड्रग्स, एंड दिस कुड बी ड्यू टू डिस्प्रोपोर्शनेट इंसुलिन सर्कुलेटिंग इन द बॉडी. सो इसको आप इस चीज का आप खास ध्यान रखें. So does low blood sugar damage your brain? So yes, extremely low blood sugar can do permanent damage. This is why I say that instantly we should keep some things that give you instant glucose in the body. So glucon D also can be consumed. So anything that will raise your blood sugar levels, that can be consumed, because आपको hypoglycemia नहीं रखना चाहिए in your body. So as soon as you have hypoglycemia, you should try to take something that will increase your blood sugar levels, because कुछ ही क्षण में permanent damage to the brain is quite possible.
So what is the best breakfast for hypoglycemia patients who have frequent hypoglycemia? आपको एक अच्छा portion of protein and एक complex carbohydrate you can take. So you can take some होल ग्रेन आटा, यहाँ पे लिखा है होल ग्रेन ब्रेड. आई एम नॉट द बिगेस्ट प्रोपोनेंट ऑफ ब्रेड. घर का जो हमारी रोटी होती है इन नॉर्थ इंडिया, पराठा इज अ स्टेपल ब्रेकफास्ट, सो दैट इज अ गुड ब्रेकफास्ट. एक स्टफ्ड पराठा जो है, यू कैन टेक दैट. ऑफ कोर्स कीप द ऑयल एंड घी टू अ बेयर मिनिमम इन दिस. एंड यू कैन कंज्यूम होल ग्रेन का होना चाहिए. इट कैन बी एनी ग्रेन, बट रिफाइंड जो है, मैदा मैदा जैसी चीजें आप इसमें कंज्यूम ना करें. सो होल ग्रेन का रोटी का पराठा यू कैन टेक सम एग्स, यू कैन टेक सम sprouts has a very good amount of protein. You can take some tofu, you can take some paneer in your you can take some paneer in your breakfast as well. So you have to take a good amount of protein and you have to take a complex carbohydrate. Complex carbohydrate क्या होता है? जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को इंस्टेंटली नहीं. so चावल जो है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं है. इट्स अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट. सो यू शुड टेक होल ग्रेन आटे की रोटी है, होल ग्रेन आटे की ब्रेड है, आप इनको ले सकते हैं. This one disclaimer here, brown bread and आटा bread में एक confusion रहता है. Please try to understand the difference. Brown bread जो है usually आप उसके ingredient देखिए, उसमें whole grain नहीं होता. So I've spoken to a baker friend and वो बोलते हैं कि जो brown bread है उसमें सिर्फ coloring डाली जाती है. It's not the most healthy thing. So be aware of what you're eating, and yeah, that's about it. So I think those are my questions for today. And there are some questions in the chat box. So केशव जी का सवाल है कि क्या एक पर्सन को जिसको हाइपोटेंशन है उसको एमआई हो सकता है? यस, सो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे हार्ट अटैक हो रहा है, एंड हार्ट अटैक वाले पेशेंट को उस समय उनको हाइपोटेंशन उनको हो रहा है साथ में. तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल. हाई हार्ट रेट एंड लो ब्लड प्रेशर, दिस इज क्वाइट पॉसिबल. It is better than supplemental because they work in response to maintain diabetic patient to prevent hypoglycemia. So yeah, DPP4 inhibitors are good drugs, but again, कौन सी drug किसको देना चाहिए? This is a very individual response. Individually हमें decide करना होता है about the medicines. So I wouldn't say that one drug is better than the other at the moment. पोहा और rice, which is better? Um, so poha is also, it's made of rice only. So इसका भी glycemic index काफी high होता है. So uh, you get these brown rice poha as well and red rice poha as well. So उनका जो glycemic index है वो इतना high नहीं है, and that can be consumed. उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं. एंड ग्लाइसेमिक इंडेक्स एज फार एज आई रिमेम्बर, पोहा एंड राइस बोथ दोनों दोनों का ही सिमिलर है. So, एस जैन जी का एक सवाल है. लेट मी जस्ट सी. This is a COVID-related question. Let me just check. At first, symptoms 6.55 weeks back. CRP was 40 on 6th day, but now back to normal. D-dimer was always normal. Chest X-ray was normal on 12th day. Blood sugar was always normal. Ferritin is so and so. Vitamin C and steroids was stopped on 12th day. However, now ferritin is still high. Okay, not obese, not iron profile. So ferritin जो है इसको वापस नॉर्मल आने में थोड़ा सा समय लगता है as compared to the other inflammatory markers. So Jain ji, please come and speak to me in the OPD. We'll try to analyze what is happening with you and give you a detailed prescription.
So again, let me just tell you that ferritin जो है, this is an also an inflammatory marker, and ये जो है ये थोड़ा delayed, इसका lag, ये इसका lag रहता है to come back to normal very soon. So hopefully in the 6.5 weeks आप कह रहे हैं हो गया है, most likely this will come down soon. Again आप कह रहे हैं अगर ये बढ़ रहा है, we need to analyze why, and I'll speak to you on the OPD. So Anshu ji कह रहे हैं, so आटा bread is bread better than brown bread if at all no one needs to eat bread. So yes, whole grain bread is better. Brown bread जो है ये एक illusion है, this is the marketing technique. ब्राउन ब्रेड इसमें सिर्फ कलरिंग डाली होती है, तो इसमें इंग्रेडिएंट्स आप चेक करें कि क्या इसमें होल ग्रेन है या ये मैदा से बनी हुई है। मेरी एक बेकर फ्रेंड है, उसने मेरे को बताया था कि ब्राउन ब्रेड अगर खाली लिखा हुआ है तो दैट कुड जस्ट बी मैदा ब्रेड विद कलरिंग। सो बी वेरी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग। रमेश चंद्र पांडे जी कह रहे हैं, आफ्टर ईटिंग फूड माय शुगर लेवल गोज डाउन, आई एम हैविंग बीपी 50 इन द मॉर्निंग, that increase in the day. So जब आप सो के उठते हैं तो your BP levels would be in towards the lower normal side, and अगर 50 तक जा रहा है ये, this is not good. BP is always talked about in two different values, systolic and diastolic. So आप हमें उसके बारे में भी बताएं। और after eating food my sugar level goes down, so immediately after eating तो नहीं, but sugar levels going down intermittently, this can happen in people who are pre-diabetic. तो क्या होता है कि जो pre-diabetic people होते हैं उनमें इंसुलिन जो है as a response to the high sugar levels के आपको बहुत जल्दी कोई symptoms नहीं आते, but your body releases insulin in response to the high sugar levels. एंड इंसुलिन अगर ज्यादा रिलीज कर दी तो आपका हाइपोटेंशन आपको हाइपोग्लाइसीमिया आपको हो सकता है। सो दिस कैन हैपन वेरी फ्रीक्वेंटली इन पीपल हु आर प्री डायबिटिक। सो इस चीज का ध्यान रखें। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आपको अभी डायबिटीज नहीं है, आपको आपकी जो शुगर लेवल्स है ये थोड़ी हाई रहती है, हाई हो जाती हैं, इसके आपको कोई सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन आपकी बॉडी को पता चलता है कि शुगर लेवल्स थोड़े हाई है, एंड उसके रिस्पॉन्स में इंसुलिन रिलीज करती है बॉडी, एक्स्ट्रा इंसुलिन रिलीज करती है। वो एक्स्ट्रा इंसुलिन की वजह से आपकी जो शुगर लेवल्स है वो ड्रॉप होती हैं और हाइपोटेंशन हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स आपको आ जाते हैं। सो ये यू आर सेइंग दैट यू हैव हैविंग लो ब्लड शुगर लेवल्स। अपना HbA1c लेवल चेक कराइए, उसमें पता चलेगा कि 3 महीने में क्या एवरेज रहा है। राकेश जी का लास्ट सवाल एंड देन वील एंड द शो। डॉक्टर मीनाक्षी, जिन लोगों को पाइल्स रहती है जिन लोगों को पाइल्स रहती है और जिन लोगों को गर्मियों में पर्टिकुलर पसीना बहुत ज़्यादा आता है, क्या उनको ब्लड शुगर ये जो है बीपी लो रहने की चांसेस ज़्यादा होते हैं क्या? पाइल्स का as such there is not much connection, but yes कोई भी खूनी chronic। खूनी खूनी जैसे खूनी पाइल्स कहते हैं ना, जिनको हिंदी में कहते हैं कि एक तो बादी होती है, खूनी वाली पाइल्स होती है, उनके बारे में पूछ रहा था। जी, सो अगर पाइल्स जिनको रहती है एंड ब्लड लॉस रहता है तो दे माइट हैव लो ब्लड प्रेशर एंड एनी कंडीशन दैट इज कॉजिंग कांस्टेंट क्रॉनिक पेन, दैट कैन आल्सो लीड टू लो ब्लड प्रेशर। सो यस, उनकी ब्लड प्रेशर लो रह सकती है, तो उनको अच्छा हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। Madam, one quick question. Is the Yes. OPD at 3 p.m. on currently? Yes. So it's been slightly irregular the last 1 week. So today, yes, we will start it at 3 p.m. Today. So आप 3 बजे आके मेरे से बात कर सकते हैं। Sure. Thank you so much. Yeah. So I think on this note, we'll end the session today. Thank you everyone for joining in. We'll be back tomorrow with another show. Until then, goodbye.